કેમ કે नाताल नो दाड़ो है, बराबर, क्रिसमस है और इसलिए हम सब लोग यहाँ पर जमा है। तो क्यों ना इस समय हम आज की सभा की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना में जाते हैं और प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में पास्टर जोनाथन सर है, वो हमारे बीच में आगे आएंगे और वो प्रार्थना करेंगे और अगुवाई करेंगे शुरुआत की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। व्हाट इज क्रिसमस? क्रिसमस क्या है ना? आज का दिन क्रिसमस का पर्व हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें मिला, तो हमारे लिए खुशी की बात है ना? अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करने जा रहे हैं। आइए हम कृष्ण पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इस सभा को ओपन करते हैं। प्रार्थना में हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करिए। गुजराती में प्रार्थना करावीश, प्रार्थना में जोड़िए। अमरा जीवन स्वामी ने अमरा प्रभु, अमे तमारो आभार मानीए छे, तमारा नाम ने धन्यवाद आपीए छे। प्रभु तमारा ये महान मोटा प्रेम ने माटे ने योजना ने माटे अमे तमारी स्तुति करीए छे। 2025 नु आ वर्ष तमे आप्યું। 2025 ना आ वर्षनी आनंदी नाताल ख्रिस्त जन्म जयंतीना आनंदना आ पर्वने माटे अमे तमारो आभार मानीए छे कि प्रभु अमे आ खुशी अने आनंदना पर्वमां सामेल थई शक्या छे। हवाला प्रभुजी अमे आभार मानीए छे 2025 वर्ष पूर्वे आ जगत में तमे तमारा पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मोकली आप्या अने मानव बन्या, गभाण में जन्म लीधो अने बेथलेहम नामना गामनी अंदर ए जन्म थयो। आ प्रभु यीशु ख्रिस्त એટલે કે પુત્ર અમને મળ્યો છે અને માટે અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ। એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમને મળ્યા માટે અમે ક્રિસમસ અને નાતાલની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમને મળ્યા છે માટે અમને અનંત જીવન પ્રાપ્ત થયું છે, તેને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ। વાલા પ્રભુજી, અમે આભાર માનીએ છીએ સમગ્ર વિશ્વ અને સમગ્ર વિશ્વની સાથે, સમગ્ર ખ્રિસ્તી સમાજની સાથે આજના દિવસે અને આ સમયે પ્રભુ અમે એકત્ર મળ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ અમે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ। ગ્રેટર ગ્રેસ મિશન અને તેમની સેવાઓને માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ। લાંબા સમયથી એમની સેવાઓ અને કાર્યોને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કર્યા અને બનાવ્યા। સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન પ્રભુ તમે તેમની સેવાઓને આશીર્વાદિત કરી માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ। મનોજ મસી સાહેબ અને સમગ્ર એ સ્ટાફને માટે અને તમામ સેવકોને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ। અને તેમના આયોજન દ્વારા અત્યારે ખાસ આ સંગતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। નાતાલ પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યારે જે પણ કાર્યક્રમ આગળ રજૂ કરવામાં આવે અને પ્રભુ આ સંગતને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો અને માટે અત્યારે આ સમયે પ્રભુ આ સંગતને તમારા નામમાં એટલે કે ત્રિકૃષ્ણ પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્માના નામમાં ઓપન કરીએ છીએ અને ખુલ્લું મૂકીએ છીએ। પ્રભુ આ સમયને, આ સંગતને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત બનાવો। પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો, સ્વીકાર કરો। આમેન। સેનાઈ ચર્ચના બાળક સાહેબનો આપણે આભાર માનીએ છીએ પ્રાર્થનાના માટે। હજુ એક પ્રાર્થનામાં જઈશું અને પાસ્ટર કિશોર આગળ આવશે અને તેઓ પ્રાર્થનાની અંદર આગેવાની આપશે। ત્યાર પછી આપણે આરાધનામાં જઈએ। આઈએ પ્રભુનો આભાર માનીએ। આ સુંદર સમયને લઈને પવિત્ર આત્માની ઉપસ્થિતિને હેઠે આવીએ। પ્રભુ આજની સંગતને શરૂઆત કરવાને માટે, ચલાવવાને માટે અનુગ્રહ અને કૃપા પૂરી પાડે। આવો આપણે આંખોને બંધ કરીએ અને પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ। પ્રભુ જીવન અને પ્રમાણ ઈશ્વર, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ અને તમારો ખૂબ જ આભાર માનીએ
પ્રભુ ઈસુ આજે સવારથી લઈને અત્યાર સુધી પ્રભુ આ મીટિંગનું આયોજન કરવા માટે અનુગ્રહ અને કૃપા આપી છે. પ્રભુ પિતા, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. સભાને તમે આશીષ કરો પરમેશ્વર. દરેક પ્રભુ આ જગ્યા પર મળેલ મહેમાનો, આગેવાનો, લીડરો, हमारा દરેક વિશ્વાસી ભાઈ બહેન, આ પ્રભુ હરેકના પર अपनी नजर, हरेकना पर अपनो हाथ रे प्रभु, ताकि प्रभु आज जगह पर अपना महिमा प्रदीप किया जाए परमेश्वर. होने दो कार्य प्रभु, ताकि मैं तुम्हारी स्तुति करिए प्रभु. पिता, घણા બધા જો રસ્તામાં આવે છે, સલામત સમય પર પહોંચવાને માટે તેમને દિશા અને દોરણે આપો પ્રભુ. તે સમય કૃપા માંગીએ છીએ પ્રભુ. અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ આજની સંગતને ને આજની સભાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા પવિત્ર આત્માના અદ્ભુત કાર્યો દ્વારા ઓ પ્રભુ તેમને તમે ભરો પ્રભુ, તાकि આ જગ્યા પર આપનો મહિમા ઊંચો થાય પ્રભુ. અમે પ્રાર્થના કરીએ અને અમે ધન્યવાદ કરીએ પ્રભુ. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પવિત્ર આત્મા. આ જગ્યા પર અમે જેટલી આરાધના અને સ્તુતિ કરીએ વસન આ પ્રભુ દરેક આયોજનને ઓ સંપૂર્ણતાની સાથે ઓ પ્રભુ પરિપૂર્ણતા કરવાને માટે પવિત્ર આત્મા દેવ તમારી ઉપસ્થિતિ, તમારી હાજરી આ જગ્યા પર સતત બને અમે કૃપા માંગી લઈએ છીએ. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ. અમારો આગળનો સમય પિતા આપના હાથમાં સમર્પિત કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમે તમારા નામમાં માંગીએ છીએ બાપ. આમેન. હલો. તો આવા સમય દેવની આરાધનાનો સમય છે અને આપણી વચમાં વર્શિપ ટીમ આગળ આવશે. Hello, check. Hello, check. हेलो जी. सबको जय मसीह की. જય મસીહ. तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हमारे जीवित परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, क्योंकि उसने हमारे लिए इस पापी जगत में जन्म लिया है. वो अद्भुत परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और उसने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है. और बाइबल भी कहती है कि हमारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार दिया गया है. हालेलुया. क्या आप सब आनंदित हैं? यस. तो हम आनंद के साथ गीत को गाएंगे और गीत है हमको खुदा ने चुना है, हम उसके अपने हैं. और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे. खुदा ने चुना है, हम उसके अपने हैं. हमको खुदा ने सृजा है, हम उसकी कलाकृति है. अनुग्रह से ही हमने उद्धार पाया, विश्वास से ही हमने उसे अपनाया. अनुग्रह से ही हमने उद्धार पाया, विश्वास से ही हमने उसे अपनाया. कार्यों से नहीं अनुग्रह से ही, कार्यों से नहीं अनुग्रह से ही भरपूर जीवन पाया. कामों के लिए जिन्हें विश्वास करना है, बनाए गए उन कामों के लिए जिससे महिमा यीशु को मिलनी है. ठहराए गए उन कामों के लिए जिन्हें विश्वास करना है, बनाए गए उन कामों के लिए जिससे महिमा यीशु को मिलनी है. बढ़ते
हम ना रोकेंगे, निरंतर चलते रहेंगे, सेवा में हाथ बने रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे। अनुग्रह से ही हमने उद्धार पाया, विश्वास से ही हमने उसे अपनाया, अनुग्रह से ही हमने उद्धार पाया, विश्वास से ही हमने उसे अपनाया। कार्यों से नहीं अनुग्रह से ही, कार्यों से नहीं अनुग्रह से ही भरपूर जीवन पाया। आशा में आनंदित अब हम रहे और क्लेशों में स्थिर भी रहे, भलाई के काम हम करते रहे और प्रार्थना में नित्य हम रहे। आशा में आनंदित अब हम रहे और क्लेशों में स्थिर भी रहे, भलाई के काम हम करते रहे और प्रार्थना में नित्य हम रहे। आपस में एक सा मन रखेंगे, भलाई हम करेंगे, बुराई को भलाई से हराएंगे, आशीष भी देंगे। अनुग्रह से ही हमने उद्धार पाया, विश्वास से ही हमने उसे अपनाया, अनुग्रह से ही हमने उद्धार पाया, विश्वास से ही हमने उसे अपनाया। कार्यों से नहीं अनुग्रह से ही, कार्यों से नहीं अनुग्रह से ही भरपूर जीवन पाया, भरपूर जीवन पाया, भरपूर जीवन पाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। पैदा हुआ है मसीह, चमका है उसका सितारा, आशाओं के दीप जलाने यहाँ। पैदा हुआ है मसीह, चमका है उसका सितारा, आशाओं के दीप जला दे यहाँ, आशाओं के दीप जलाने यहाँ। पैदा हुआ है मसीह, स्वर्गदूतों ने मिलकर गाया, एक सुनहरा गीत सुनाया, सभी लोगों ने दर्शन पाया, मिटा अंधेरा उजियाला आया। स्वर्गदूतों ने मिलकर गाया, एक सुनहरा गीत सुनाया, सभी लोगों ने दर्शन पाया, मिटा अंधेरा उजियाला आया। पैदा हुआ है मसीह, चमका है उसका सितारा, आशाओं के दीप जलाने यहाँ,
हुआ है मसीह। महलों से ज्यादा चरनी निराली, जिसमें रखा गया नूरे जलाली। यरूशलेम की किस्मत निराली, झूम रही है हर डाली डाली। महलों से ज्यादा चरनी निराली, जिसमें रखा गया नूरे जलाली। यरूशलेम की किस्मत निराली, झूम रही है हर डाली डाली। पैदा हुआ है मसीह, चमका है उसका सितारा। आशाओं के दीप जलाने यहाँ, आशाओं के दीप जलाने यहाँ। पैदा हुआ है मसीह। अद्भुत परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि मनुष्य के पास कोई आशा नहीं थी, राइट। और सच में एक मनुष्य के पास कोई आशा नहीं थी, और वो आशा लेके प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया। और बाइबल बताती है कि वो उजियाला लेके आया, राइट, क्योंकि सभी मनुष्य क्या थे, पाप में पड़े हुए थे, और उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर इस धरती पे आया। वो महान परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की हम महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारणहारा। तो इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारणहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारणहारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की हाथों का तारा, आया चरनी में राज दुलारा। मरियम की हाथों का तारा, आया चरनी में राज दुलारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारणहारा। मैदानों में करते रखवाले, चमके रोशनी को निराली। मैदानों में करते रखवाले, चमके रोशनी को निराली। आया दुनिया में यीशु जलाली, यह शुभ संदेशा आया। आया दुनिया में यीशु जलाली, यह शुभ संदेशा आया। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारणहारा। हम भी आकर नजर चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। हम भी आकर नजर चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। भूखे प्यासों का वो ही सहारा, आया चरनी में तारणहारा। भूखे प्यासों का वो ही सहारा,
को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, आपने अपने आप को खाली किया प्रभु, आपने हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़ दी परमेश्वर। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पिता परमेश्वर, आपने महिमा छोड़ दी, आपने उस स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा ताकि हम प्रभु आनंद महसूस कर सकें, हम एक सच्चे प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। इस गीत को गाएंगे, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। और इस गीत के दरमियान हम अपने जीवन को याद करेंगे कि पहले हमारा जीवन कैसा था और परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारे जीवन को किस स्थिति में से किस स्थिति में लेके आया है। उस सभी उपकारों को हम याद करेंगे और उसको धन्यवाद करेंगे। अपना हृदय हम परमेश्वर के सामने लेके जाएंगे इस गीत के द्वारा। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान,
में मना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु राजा तू ही है, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, आपने अपने आप को खाली किया प्रभु। और बाइबल बताती है कि आपने इतना शून्य कर दिया कि आपने क्रूस की मृत्यु भी सह ली परमेश्वर। और उसका एक ही कारण था कि आप हमसे प्रेम करते हो और आप नहीं चाहते कि हम नरक में जाए प्रभु। यस परमेश्वर, हम आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके उस अद्भुत बलिदान के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर आप तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो प्रभु। और यही हमारे लिए बड़ी आशा है कि एक दिन हम ये संसार छोड़ेंगे, लेकिन प्रभु हम अनंत काल तक आपके साथ रहेंगे। आपके इस अद्भुत आशा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारे जीवन में जो आनंद है परमेश्वर, वो उसका कारण सिर्फ आप हो परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। आज की सभा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, आने वाली जो भी एक्टिविटीज़ है परमेश्वर, और ख़ास करके हम आने वाले संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उनके द्वारा हमसे बातें करना परमेश्वर। यस प्रभु यीशु मसीह, हम सभी का जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। थैंक यू। समय रहा परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करना, और यहाँ पर एक साथ मिलकर हम एकत्रित होकर उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आदर की योग्य है ना, जो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। और वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है ना, जो हमारी सोच और हमारे समझ से भी परे है। और इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि आज हमारा यहाँ पर एकत्रित होना उसके अनुग्रह से ही है। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं, जो आदर महिमा की योग्य है। तो धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर का। और हमारे बीच में यहाँ पर हम जानते हैं कि क्रिसमस हम उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नाताल मनाएंगे। तो हमारे बीच में कई सारे लोग जो नए हैं और पहली बार हैं। तो जो लोग नए हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, जो यहाँ पर पहली बार आए हैं।
તો આપણા વચમાં જો કોઈ પહેલી વખત આવ્યું છે આ જગા પર તમો ક્રિસમસ મનાવવા માટે, તો તમે પોતાની જગ્યા પર ઊભા થજો, અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. તો આવો આપણે બધાનો જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. ધન્યવાદ, તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે આ જગા પર સમય કાઢીને આવ્યા માટે તમારો ખૂબ આભાર માનીએ છે અને ધન્યવાદ हो. तो તમે તમારી જગ્યા पर બેસી શકો. हमारे बीच में कुशलगढ़ से हैं, हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं और आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हो. हम कुशलगढ़ के चर्च से आए हुए लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं. थैंक यू, धन्यवाद आने के लिए. आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं. और हमारे बीच में कई सारे पासवान हैं, उनका हम स्वागत करना चाहते हैं. पास्टर रमेश कटारा अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं. बच्चू भाई, पास्टर बच्चू भाई, पास्टर किशोर भाई अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं. पास्टर भरत भाई, पास्टर छगन भाई, पास्टर थावरा भाई, पास्टर कमलेश डामोर, पास्टर रामलाल भाई, पास्टर मन्नू भाई पारगी, पास्टर विक्रम भाई, पास्टर मन्नू भाभोर, पास्टर लालू भाई, और कोई पासवान यदि छूट गया हो तो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हो. पास्टर बाबू भाई भी है और बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट भी खड़े हो सकते हैं. दला भाई, वीर सिंह भाई, है ना, सब लोग खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पर. यदि कोई पासवान है, कोई सेवक है, तो भी वो खड़े हो सकते हैं. हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, कोई भी हो सेवक हो. तो थैंक यू, धन्यवाद आने के लिए. ये प्रभु की सेवा करते हैं, हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं. आप अपने स्थान पर बैठ सकते हो. थैंक यू, धन्यवाद. और हमारे बीच में पास्टर जोनाथन सर है, सेनाई के पाड़क साहब, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं उनके परिवार के साथ. और साथ में विजय डामोर जी सर हमारे साथ है, वो भी खड़े हो सकते हैं परिवार के साथ. और जो भी CNI चर्च से है मेंबर, वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं. मैं नाम नहीं जानता लेकिन आप खड़े हो सकते हो. हम आपका भी स्वागत करना चाहते हैं. थैंक यू, धन्यवाद आने के लिए, आपका कीमती समय के लिए धन्यवाद करते हैं. और कुछ सूचनाएं ये है कि रविवार की सभा होती है हमारी, शाम 5 बजे होती है. और कुशलगढ़ में भी चर्च होता है, सुबह 10 बजे होता है रविवार के दिन, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हो. और यदि आप सभा के अंदर शामिल होना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप मिल सकते हैं, संगति में जुड़ सकते हैं, प्रभु के बारे में सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं ना. तो धन्यवाद है. तो ये समय रहेगा, किसी का स्वागत नहीं किया है तो माफ़ करना, है ना. हमारा यहाँ पर झालोद चर्च है ना, उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं. पास्टर मनोज के लिए हम स्वागत कर सकते हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से. थैंक यू, धन्यवाद. तो ये समय रहेगा और बहुत ही अद्भुत समय रहेगा. तो आप आनंदित रहिए क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जन्मे थे, पापों से, श्रापों से, मौत से छुड़ाने के लिए, है ना. और उनका जन्मोत्सव हम आज मना रहे हैं और हमारे लिए अद्भुत समय रहेगा. तो ये समय रहेगा हमारे बीच में झालोद संडे स्कूल बच्चों से जो वेलकमिंग डांस रहेगा उनका, तो हम उनका स्वागत करते हैं.
खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। बहुत ही अच्छा डांस था और बच्चों ने उनका गीतों के द्वारा, उनके एक्शन के द्वारा है ना, वो परमेश्वर के स्वभाव को, उसके चरित्र को प्रकट करता है। तो अद्भुत है। फिर से एक बार हम बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। और इस समय में हमारे बीच में कुशलगढ़ चर्च से बच्चों का डांस होगा और वो भी आगे आ सकते हैं। और उसके बाद जो स्किट में है जालो चर्च से, वो तैयार रहे। थैंक यू। राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर युगों से युगों तक एक ही है राजा।
बहुत ही अद्भुत डांस था कुशलगढ़ के चर्च के बच्चों के लिए, तो हम उनका धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और इस समय में हमारे बीच में अभी झालोद चर्च से कुछ स्किट रहेगा, नाटक, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हो। नाटक के बाद पास्टर रमेश कटारा और उनकी टीम बेली गीत के लिए तैयार रहो। हाँ, कितना अच्छा सपना देख रही थी, इसने बीच में ही उठा दिया। ये अलार्म बजना चाहिए तो नाच रहा है। पहले जाकर मैं इसे बंद करती हूँ। हर दिन सुबह सुबह मैं ही उठाता हूँ, लेकिन आप मुझे ही मार रहे हो। अगर आप अच्छे से यूथ प्रार्थना के लिए जाते तो ऐसा नहीं करते। तुम्हारा मुंह देखा है, कोरोना से ग्रसित हुआ लग रहा है। पहले तुम्हारा दोनों बैटरी निकाल देती हूँ, तब चुप रहोगे। अब मैं आराम से जाकर सो जाती हूँ। दीदी, आप तो बाइबल है ना, आपकी तबीयत को क्या हुआ? क्यों आप बार बार चीख रहे हो? मुझे अच्छी तरह देखो, मुझ पर कितना धूल जमा है। शुरुआत में नेहा मुझे कितना ढूंढती थी और पढ़ती थी, लेकिन अब तो वो मुझे भूल ही गई है। अब वो बदल गई। अच्छा, जब उसने मुझे मारा ना, तभी मुझे पता चला। Miss Neha, you have one text message. Miss Neha, you have one text message. Miss Neha, you have one text message. क्या टेक्स्ट मैसेज? देखते हैं क्या है। ये गूगल असिस्टेंट ने सबको कितना अच्छा वॉइस दिया है, लेकिन मेरा मोबाइल ही कितना बेसुरा आवाज देता है। आपके लिए इतना ही काफी है मिस नेहा। ठीक है, कॉल अटेंड करती हूँ। हेलो हेलो। कॉल नहीं आया है, टेक्स्ट मैसेज ही आया है। हाथ छोड़ो मेरा। टेक्स्ट फॉर्मेट है क्या? मैंने सोचा MP3 फॉर्मेट है। आई कम टुमारो पार्टी। ओके आई कम। अरे बाप रे, कितना नोटिफिकेशन आया है। इंस्टा में, फेसबुक में, व्हाट्सएप से। ओहो, मुझे गुदगुली क्यों कर रहे हो? हाथ छोड़ो। टच फोन बोलकर इतना भी टच नहीं कर सकते क्या? पहले ये ना पुराना मोबाइल का मॉडल बेचकर नया मॉडल खरीदना पड़ेगा। सुबह उठकर बिना मुंह धोकर व्हाट्सएप देखती हो, बिना फेस धोए फेसबुक देखती हो, बिना टी पिए ट्विटर देखती हो, बिना इंटरेस्ट से इंस्टाग्राम चलाते हो, और आप मुझे बोल रहे हो तेरा पूरा हिस्ट्री मेरे पास है। तुम्हारा हिस्ट्री डिलीट हो सकता है, लेकिन नाम नहीं डिलीट हो सकता। अरे बाप रे,
हिस्ट्री डिलीट करेंगे तो भी मेरा नाम उसमें रहेगा बोल रही है। गूगल आंटी प्लीज मेरा नाम डिलीट कर दीजिए ना। Your battery is running low. Your battery power is now critical. तुमको जो बताना था वो बोल दिया, और जब मेरी बोलने की बारी आई तो बैटरी लो। वाह, अब मैं टीवी देखकर ही पूरा दिन बिताना पड़ेगा। चलो अब टीवी देखेंगे। रिमोट कहाँ है? रिमोट मिल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब। क्यों इतना बकवास गा रहा है? दूसरा चैनल देखते हैं। अरे इसमें भी गाना आ रहा है। ओहो, ठीक है न्यूज़ देखते हैं। नमस्कार, आज का मुख्य समाचार। नवी मुंबई में एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को मारा। क्या सब जगह देखो यहाँ मारपीट वहाँ मारपीट, ये न्यूज़ देखने के लायक ही नहीं बचा है। दूसरा चैनल लगाती हूँ। I can experience the power of God from the redemption of the saints. ताकि मेरे जीवन में चर्च में भी पास्टर जी का प्रचार सुनने का, और अभी टीवी में भी प्रचार आया है। सॉरी पास्टर जी, बंद कर रही हूँ आपको। ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है? ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है? अभी इसे नया लेना पड़ेगा। हमेशा मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? पता नहीं क्या रिमोट का कैसा यूज करने का? सोते समय उठते समय मुझ पे ही बैठते हो तो मैं कैसे अच्छे से काम करूंगी? इतने से रहकर मुझे बोल रही है क्या? दोनों बैटरी निकाल दूंगी ना, बात ही नहीं करेगी। नेहा, मुझे पहचानती हो क्या? कौन है? बाइबल? आपको कौन नहीं जानता? अगर आपको नहीं पहचानूंगी तो कितने शर्म की बात है। मैं तो आपको अच्छी तरह पहचानती हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे याद रखा है। कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ टीवी मोबाइल में ही आप ज्यादा समय बिता रही हो। आप बदल गई हो नेहा। आप क्या बताना चाहते हो? अब यही चीजें आपको इम्पोर्टेंट हो गई है ना? इनके बिना मैं जी नहीं सकती। सही है ना? उनकी जैसी जरूरत होती है वैसे ही मैं मदद करता हूँ। जब वो दुखी रहती है तब मैं उनको कॉमेडी शो दिखाता हूँ, और जब उदास में रहते हैं तब प्रेम गीत सुनाता हूँ, और जब बोर हो जाते हैं तब स्पोर्ट्स दिखाता हूँ। ये सब तुम कर सकते हो क्या? हाँ सही है। रुको, आपसे ज्यादा तो वो मुझे यूज करती है। आप ओल्ड ट्रेंड हो और मैं नया ट्रेंड हूँ। वो जो कपड़ा पहनती है, खाना खाती है, वो सब मेरे द्वारा ही ऑर्डर करती है। अगर उसे किसी से बात करना हो तो वो मुझे यूज करती है, और यह सब छोड़ो, बाथरूम जाने के टाइम पे भी वो मुझे लेके जाती है। ये सब पब्लिक में मत बताओ। ऐसे ही मैं न्यूज़ देखने के लिए लेकर जाती हूँ, और यही सच है। यह सब आपको बहुत पसंद है ना? ऑफ कोर्स, इनके बिना मेरी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। आपसे एक बात पूछूं क्या? इन सब चीजों के द्वारा क्या आप परमेश्वर से बात कर सकते हो? वो नहीं हो सकता है बाइबल। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ नेहा, आप परमेश्वर से बहुत दूर चली गई हो। आप बदल गए हो। नहीं बाइबल, मैं नहीं बदली। नहीं, आप बदल गए हो नेहा। आप उद्धार पाए हो ना। सुबह उठकर आप पहले किसे ढूंढते हो? बाइबल को ही पहले ढूंढते थे, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करने के लिए पहला स्थान देते थे। लेकिन अब आप किसे प्रथम स्थान देते हो? किसे पहले ढूंढते हो? अच्छे से सोचो नेहा, आप बदल गए हो। नहीं, मैं नहीं बदली। आप परमेश्वर को भूल गए हो। नहीं, मैं नहीं भूली। आप पाप का गुलाम बन गई हो। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। आप बदल गए हो नेहा। मैं नहीं बदली, नहीं बदली, नहीं बदली। क्या ये सब सपना था क्या? अलार्म बज रहा है। पहले मैं अलार्म को बंद करती हूँ। बाइबल, इनको मैं मिस नहीं करूंगी। ये मेरे लिए है। इसे परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है। अच्छा हुआ परमेश्वर ने मुझसे बात किया। कितने दिन से मैं अपने आप को धोखा दे रही थी। अब मैंने महसूस किया, अब मैं मेरे जीवन को वेस्ट नहीं करूंगी। परमेश्वर उनके वचन को प्रथम स्थान दूंगी। कितने सालों से हम चर्च आ रहे हैं। बाहरी रूप से हम अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर हम कैसे हैं?
एक मिनट के लिए आप स्वयं को जांचिए। इस क्रिसमस में आप निर्णय लीजिए कि आप किसे प्रथम स्थान देंगे। हमें अनंत जीवन देने इस संसार में आए उस यीशु मसीह को, या हमारे जीवन को नाश करने वाले इस संसार की वस्तुओं को। बहुत ही अद्भुत नाटक था, है ना, स्किट उनका। और अद्भुत है कि बाइबल के साथ हमें समय बिताना चाहिए, क्योंकि बाइबल वो परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, है ना। यीशु मसीह ने खुद कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी नहीं जाएगी। तो जो मतलब एक एक कहना मात्र है ना, उसका मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कहा है वैसा वो करेगा। बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर के स्वभाव को, उसके अनंत जीवन को जान पाते हैं। तो अद्भुत बात है। तो आइए इस समय हम फिर से एक बार जोरदार ताली बजाते हैं जालोद टीम के लिए, जिन्होंने अद्भुत स्किट किया उसके लिए। और हमारे बीच में पास्टर रमेश कटारा है, उसका टीम है। तो भिले के गीत गाएंगे वो लोग, तो हम उनका स्वागत करते हैं। क्या आप सब लोग खुश हो, आनंदित हो? अपने पड़ोसी से कहिए जागते रहिए, अद्भुत समय आने वाला है ना। वचन का संदेश भी रहेगा, परमेश्वर हमसे अद्भुत तरीके से बातें कर सकता है। तो आप आ सकते हो बहनों, आप जल्दी आइए। हालेलुया। खोल ज़ालमिया ज़ालमिया है मारे गाड़िए, ज़ालमिया ज़ालमिया है मारे ओ गाड़िए, ज़ालमियो ज़ालमियो है मारे आंगणिए, ज़ालमियो ज़ालमियो है मारे आंगणिए। राजा न राजा है मारे आंगणिए, राजा न राजा है मारे आंगणिए। राधा ओ नो राधा है मारे आंगणिए, राजा ओ नो राजा है मारे आंगणिए। मोटन काम करे है मारे आंगणिए, मोटन काम करे है मारे आंगणिए। मोटन काम करे मारे आंगणिए, मोटन काम करे मारे आंगणिए। राजा न राजा है मारे आंगणिए, राजा न राजा है मारे आंगणिए। राधा ओ नो राधा है मारे आंगणिए, राधा ओ नो राधा है मारे आंगणिए। बनवासन आले है मारे आंगणिए, बाए बनवासन आले है
લમિયો હે મારે આંગણીએ કોવારીને ખોળે 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 હે મારે આંગણીએ પાપના માફી આલે હે મારે આંગણીએ પાપના માફી આલે હે મારે આંગણીએ આંગણીએ પાપન માફી આલે હે મારે આંગણીએ પાપન માફી આલે હે મારે આંગણીએ મોટન કામ કરે હે મારે આંગણીએ મોટન કામ કરે હે મારે આંગણીએ આંગણીએ મોટન કામ કરે હે મારે આંગણીએ મોટન કામ કરે હે મારે આંગણીએ ઝાલમિયા ઝાલમિયા હે મારે આંગણીએ ઝાલમિયા ઝાલમિયા હે મારે આંગણીએ આંગણીએ લમિયો હે મારે આંગણીએ લમિયો હે મારે આંગણીએ હાલેલુયા હાલેલુયા સરસ સમય રહ્યો है ना। और પેલી અદ્ભુત કઈ થતું કે જન્મ્યો જન્મ્યો કઈ જન્મ્યો મારે આંગળીએ બરાબર। અદ્ભુત है कि प्रभु ઈસુએ આપણા હૃદયમાં જન્મ લીધો तो देवનો आभार मानी है। અને अद्भुत समय रहेगा, परमेश्वर का वचन का समय है और हमारे बीच में पास्टर मनोज है, हम उनका स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? શું તમે બધા તૈયાર છો પ્રભુનું વચન સાંભળવા? आप सभी लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा તો है। તમને બધાને જોઈને ઘણું અસર લાગ્યું। थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत તમારો धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ આભાર અહીંયા આવ્યા તમે સમય કાઢી। और हम जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हैं। અને આપણને ખબર છે કે આપું બધા આ જગ્યા પર શા હાડું ભેગા થયા છે। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इस धरती पे जन्म लिया આપણને ખબર છે કે પ્રભુ ઈસુએ આપણા ખાતર આ દુનિયામાં જન્મ લીધો। और वो क्यों जन्म लिए हैं। અને એમણે શા ખાતર જન્મ લીધો? हम जानते हैं यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज छोड़ा। આપણને ખબર છે કે પ્રભુ ઈસુએ પોતાનું સ્વર્ગનું રાજ્ય છોડી દીધું। क्यों छोड़ा स्वर्ग का राज? અને પ્રભુ ઈસુએ પોતાનું સ્વર્ગનું રાજ્ય કેમ છોડી દીધું? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में अकेला नहीं रहना चाहता है। કેમ કે પ્રભુ પોતે એકલો રહેવા નહીં માંગતા। और इसीलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आया અને એટલા હારું એ પોતાનું સ્વર્ગ છોડીને આ દુનિયામાં ઉતરી આવ્યા ताकि हम उसके साथ रह सकें। જેથી કરીને આપું એમની હંગાતે રહીએ। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता અને है દેવ આપણને ઘણો જ પ્રેમ કરે। और परमेश्वर की ये इच्छा है અને દેવની એવી ઈચ્છા છે कि हम उसके साथ रहें। કે આપું એમની હંગાતે રહીએ। सिर्फ हम नहीं, ફક્ત આપણે જ નહીં, पूरी दुनिया, परमेश्वर पूरी दुनिया से प्यार करता है। આખી દુનિયાના પ્રભુ પ્રેમ કરે ને આખી દુનિયા એમની હંગાતે રહે। पूरी मानव जाति से प्रेम અને करता है। દેવ આખી દુનિયાના દરેક માણસ જાતને પ્રેમ કરે છે। और परमेश्वर बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है અને બાઇબલ બતાવે છે યોહાન 3:16 માં कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम તો रखा દેવે જગત પર એટલો બધો પ્રેમ રાખ્યો कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया એમણે પોતાનો એકનો એક દીકરો આપી દીધો ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे જેથી કરીને જે કોઈ એના પર વિશ્વાસ કરે वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। એનો નાશ ન થાય પરંતુ તે અનંત જીવન પામે। हालेलुया। હાલેલુયા।
आप सब लोग सो तो नहीं रहे हो? કોઈ ઊંઘી તો નહીં ગયો ને? अपने पड़ोसी को चेक करके बताइए। તમારા પડોશીને જુઓ તો તપાસ કરો તેની। हालेलुया। હાલેલુયા। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। यस। ओके, तो आप लोग जग रहे हैं, मुझे पता चल गया। તો ખબર પડી કે તમે જાગી રહ્યા હો। तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए खड़े रहेंगे। તો આવો આ સમય પ્રભુના વચનો વાંચીએ, એ સમય આપણે પોતાના જગ્યા પર ઊભા થઈએ। और लूका की किताब उसका 2रा अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति से लेके 12वीं पंक्ति तक। લૂકની સુવાર્તા તેનો 2જો અધ્યાય અને તેની 8મી કલમથી લઈને આપણે આગળ વાંચીશું। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड पर पहरा देते थे। અને તે દેશમાં ઘેટા પાળકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને પોતાના ટોળાને સાચવતા હતા। और प्रभु का एक दूत उनके पास आया, आ खड़ा हुआ। પ્રભુનો એક દૂત તેઓની પાસે આવીને ઊભો રહ્યો। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। ને પ્રભુના ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓની આસપાસ દેખાયો। और वे बहुत डर गए। અને તેઓ ઘણા જ ડરી ગયા। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, ત્યારે સ્વર્ગદૂતે તેઓને કહ્યું, मत डरो, બીસો નહીં, क्योंकि देखो, કેમ કે જુઓ मैं तुम्हें હું તમને बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, મોટા આનંદની સુવાર્તા સંભળાવું છું, जो सब लोगों के लिए होगा। જે બધા લોકોના માટે થશે। और वो सुसमाचार क्या है? અને સુવાર્તા કોને કહેવાય છે? आगे लिखा है, અને આગળ લખેલું છે, और कि आज दाऊद के नगर में કેમ કે આજે દાઉદના શહેરમાં तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। તમારે સારું એક તારણહાર जन्मा है એટલે ખ્રિસ્ત પ્રભુ જન્મ્યો છે। बाइबल बताती है कि एक अच्छी न्यूज़ इस दुनिया के लिए कुछ है, तो वो ये है कि यीशु मसीह इस धरती पे जन्म लिया है। અને બાઇબલ એવું કહે છે કે જો આ દુનિયામાં કોઈની પાસે કોઈ સારી ખબર હોય, ભલી ખબર, તો એ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થવો। और बोलता है कि और यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आज ખ્રિસ્ત જે પ્રભુ છે, તમારે સારો એ નિશાની છે કે તમે એક બાળકને લુગડામાં લપેટેલો ગભાણમાં સૂતેલો જોશો। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी महान असीम कृपा के लिए पिता परमेश्वर, कि आप हमारी खातिर मनुष्य बने, आप स्वर्ग का राज छोड़कर इस धरती पे आए ताकि हम स्वर्ग जा सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करो, मेरे मुख को छुई से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। તમે પોતાની જગ્યા પર બેસી શકો છો। सो ओके, जैसा कि हमने यहाँ पर वचन में पढ़ा જે રીતના આપણે અહીંયા પ્રભુનું વચન જોયું कि कुछ गरड़िए थे जो मैदान में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे અને थे, કેટલા ઘેટા પાળકો હતા જે રાત્રે પોતાના ઘેટાના ટોળાને સાચવતા। लेकिन वहां पर एक स्वर्गदूत ने आकर उनको एक संदेश दिया। અને ત્યાં એક સ્વર્ગદૂત આવી ગયો અને તેણે સંદેશો આપ્યો। हमने कई बार आपने सोचा है, અને કેટલીક વખત તમે આ રીતનું इस વિચાર્યું दुनिया છે में ક્યારે? बहुत सारी खबरें हैं, આ દુનિયાની અંદર ઘણી બધી ખબરો છે। है ना? हम सब खबर सुनना चाहते हैं। આપણે બધા બહુ સારી એવી ખબરો સમાચાર સાંભળીએ છે। यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा આ है, જગ્યા પર હું ચાલી રહ્યું है, પેલી જગ્યા પર હું ચાલી રહ્યું है। राइट? हम सब खबरें सुनते हैं, આપણે બધે આવા और સમાચારો खबर સાંભળીએ છે। जो है वो हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। અને આવા સમાચારો આપણા જીવનની અંદર ઘણો અસર લઈ આવે છે। समाचार हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर सकता અને है। આ સમાચારો આપણા જીવનની અંદર ઘણો બદલાવ લઈ આવે છે। समाचार हमारे लिए बहुत जरूरी है। અને આ સમાચારો આપણા માટે જરૂરના છે। यदि हमें समाचार नहीं मालूम है तो हमें ये नहीं पता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। અને જો આપણે સમાચાર નહીં સાંભળીશું તો આપણને ખબર નહીં પડે કે આ દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે। राइट?
સાચી વાત છે. हमें नहीं पता होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है. આપણને ખબર નહીં પડે કે આવનાર દિવસોની અંદર બધું શું બનવાનું છે. समाचार बहुत जरूरी है. અને એટલા માટે સમાચાર સાંભળવા બહુ और જરૂરી यहाँ છે. पर गरड़िए जो थे वो मैदान में भेड़ों की रखवाली कर અને रहे थे. અહીંયા કેટલા ઘેટા પાળકો હતા જે રાત્રે ઘેટાના ટોળાને સાચવતા હતા. आपको पता है भेड़ों की रखवाली वो क्यों कर रहे અને थे? તમને ખબર છે ઘેટાના ટોળાને હું કામ સાચવતા હતા? चरवाहों का एक काम हुआ करता है. અને ઘેટા પાળકો ગોવાળ એમનું એક કામ હતું. वो फसह के पर्व के लिए मेमनों को तैयार करते हैं. અને જે ફસ પર્વ આવે છે પાસ્કા પર્વ એની એ તૈયારી કરતા હતા. मेमनों को तैयार करते અને हैं એ હલવાન જે ઘેટા એની તૈયારી કરતા. क्योंकि आने वाले समय में उनको बलिदान किया जाएगा. કેમ કે આવનાર સમયની અંદર એમનું બલિદાન કરવામાં આવે. क्यों? શા હાતર એવું? क्यों एक निर्दोष मेमने को मरना पड़ेगा? અને શા હાતર એક નિર્દોષ ઘેટાના બલિદાન થવું પડતું હતું? क्योंकि मनुष्य पापी है. કેમ કે માણસ પાપી है. और मनुष्य की पाप की वजह से एक निर्दोष मेमने को हर साल बलिदान होना पड़ता था. અને માણસના પાપના લીધે એક નિર્દોષ ઘેટાને બલિદાન થવું પડતું હતું, એને મરવું પડતું હતું. लेकिन પરંતુ वो बलिदान हमेशा के लिए था. પરંતુ वो बलिदान हमेशा उनको करना पड़ता था. એ બલિદાન હંમેશા એમણે કરવું જ પડતું हर હતું. साल. દર વર્ષે. ये एक चिन्ह के रूप में था. અને આ એમના માટે એક ચિહ્ન નિશાની कि હતી. एक दिन एक मेमना इस धरती पर आएगा. એક દાડો આ દુનિયામાં એક મેમનો એક હલવાન એક ઘેટું આ દુનિયામાં આવે. और वो प्रभु यीशु मसीह है. અને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના और બારામાં. प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर एक मेमने के रूप में जन्म અને लिया. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ દુનિયામાં એક ઘેટાની રૂપમાં જન્મ લીધો. मेमने कहाँ जन्म लेते हैं? અને ઘેટાઓનો જન્મ ક્યાં થાય છે? गौशाला में, राइट? એ ગભાણની અંદર. यीशु मसीह ने कहाँ जन्म लिया? અને પ્રભુ ઈસુએ ક્યાં જન્મ લીધો? यीशु मसीह ने यहाँ पर एक चिन्ह दिखाया અને कि પ્રભુ वो परमेश्वर का मेमना है. અને પ્રભુએ અહીંયા એક ચિહ્ન દેખાડ્યું, એક નિશાની દેખાડી કે ઈસુ ખ્રિસ્ત એ દેવનું એક ઘેટું છે. और बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना का 1:29 में लिखा है, અને બાઇબલમાં યોહાન 1:29 માં લખેલું છે. देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है. અને જુઓ આ તો દેવનું હલવાન જે દેવનું ઘેટું છે જે જગતના પાપોને પોતાની ઉપર ઉઠાવી લઈ જઈ રહ્યું तो છે. अब चरवाहों को मेमने तैयार करने की जरूरत नहीं है. તો હવે એ ઘેટા પાળકોને એ ઘેટાઓને તૈયાર કરવાની જરૂર નહીં મળે. उन्हें जरूरत नहीं है रात भर जाग के उनको पवित्र रखने की. અને હવે એના રાતભર જાગીને એમના પવિત્ર શુદ્ધ રાખવાની કોઈ જરૂર નહીં મળે. क्योंकि अब एक पवित्र मेमना उनके लिए जन्म ले કેમ चुका કે है. હવે એક પવિત્ર ઘેટાએ જન્મ લઈ લીધો હોય. वो ही प्रभु यीशु मसीह है. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે और છે. इसीलिए सबसे पहली जो खबर है वो गरड़ियों के पास आई, चरवाहों के અને पास. એટલા માટે સૌથી પહેલો જે સમાચાર આવી ગયો એ ઘેટા પાળકોની પાસે तो આવી आज ગયો. इस दुनिया में बहुत सारी खबरें हैं. આજે આ દુનિયાની અંદર ઘણા એવા સમાચાર છે. बहुत खबरें हैं. અને ઘણા સમાચાર और हम जानते हैं कई बार खबरें हमें दुखी कर देती અને हैं. આપણને ખબર છે કે ઘણા એવા સમાચાર છે જે આપણે સાંભળીને આપણને ઘણું દુઃખ લાગે. कुछ खबरें हमको कुछ समय के लिए खुश कर देती हैं. હા, ઘણીક એવી ખબરો છે જે આપણને થોડા માટે ખુશ કરે. बहुत कुछ. હા, ઘણું બધું. लेकिन ये जो खबर है जो स्वर्गदूत ने चरवाहों को दी, ये सबसे ऊंची खबर है. અને આ ખબર જે આ સમાચાર છે જે સ્વર્ગદૂતે ઘેટા પાળકોને આપ્યા એ સૌથી મોટા સમાચાર છે. उसने बोला मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार અને सुनाता हूँ. કહેવામાં આવ્યું કે હું તમને મોટા આનંદની સુવાર્તા બડે. આપું છું. ये छोटा मोटा नहीं है. આ મોટી આનંદની સુવાર્તા છે. કોઈ ये નાની વાત आनंद ऐसा નથી. नहीं है कि आज है और कल खत्म हो जाएगा. અને આ આનંદ એ એવો આનંદ નહીં જે આજે है ને કાલે ખતમ થઈ ये જાય. आनंद बहुत गहरा आनंद है. આ આનંદ તો બહુ ઘણો ये ઊંડો बहुत આનંદ बड़ा છે. आनंद है. આ ઘણો મોટો આનંદ ये છે. इतना बड़ा इन्फिनाइट है कि ये कभी खत्म नहीं होगा. અને આ આનંદ એટલો મોટો છે કે જ્યારે પૂરો નહીં થાય कभी खत्म नहीं એ होगा. ક્યારે ખતમ और નહીં થાય. इसीलिए मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार અને सुनाता हूँ. એટલા માટે હું તમને મોટા આનંદની સુવાર્તા સમાચાર આપું છું. आज इस दुनिया में मनुष्य को अच्छी खबर की जरूरत है. આજે આ દુનિયાની અંદર માણસને એક અસલ સમાચારની જરૂર છે. आनंद की खबर की जरूरत અને है. આનંદની સુવાર્તાની જરૂર છે. क्योंकि इस दुनिया में बहुत बुरी खबरें भी हैं. કેમ કે આ દુનિયાની અંદર ઘણી એવી બહુ ખરાબ हम ખબરો છે. जानते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय में અને આપણને ખબર છે બાઇબલની અંદર ઉત્પત્તિ 3 અધ્યાયની અંદર एक बुरी खबर आई. ત્યાં એક ખરાબ સમાચાર સાંભળવામાં આવ્યા. कैसी खबर थी वो? અને કેવી ખબર હતી? क्या खबर थी बुरी? અને હું ખોટા સમાચાર એમણે સાંભળ્યા. बाइबल बताती है कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया અને બાઇબલ કહે કે આદમે દેવની આજ્ઞાને તોડી નાખી. और उसकी वजह से અને એના જ લીધે
बोलता है कि मनुष्य के अंदर पाप आ गया। માણસની અંદર પાપ આવી ગયું। बाइबल बताती है, रोमियो का 3:23 में लिखा है અને બાઇબલ રોમન 3:23 માં લખેલું है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। કે બધાએ પાપ કર્યું है અને બધા જ દેવની મહિમાથી અધૂરા થઈ ये ગયા। मनुष्य के लिए बुरी खबर है। અને આ માણસના માટે એક ખરાબ સમાચાર मनुष्य पापी है કે માણસ પાપી है और वो परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंच અને सकता। એ દેવની પાસે ક્યારેય જઈ નહીં શકતો। ये बुरी खबर है। આ ખરાબ સમાચાર है એના માટે। मनुष्य यदि अपने पापों में मर गया, वो एक दिन नरक चला जाएगा। અને જો માણસ પોતાના પાપની અંદર એ મરી ગયો તો એક દિવસ એ નરક ચાલ્યો જશે। मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका है, ये बुरी खबर है। અને માણસ પ્રભુથી ઘણો દૂર ચાલ્યો ગયો है એ આના માટે ખરાબ સમાચાર है। लेकिन उसी के बीच में एक अच्छी खबर आती है। પરંતુ આ બધી બાબતોની વચમાં એક અસલ સમાચાર આવી ગયા। मनुष्य पता है परमेश्वर से कितना दूर है? અને તમને ખબર है માણસ પ્રભુથી કેટલો ઘણો दूर है? हम सोचते हैं कई बार हम शायद थोड़ा दूर हैं। लाइक विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस दुनिया में लोग हैं जिन्होंने अब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में। અને આ દુનિયાની અંદર ઘણા બધા લોકો ઘણા પ્રભુથી દૂર છે જેમણે પ્રભુ ઈસુને પોતાના તારણહારની રૂપમાં વિશ્વાસ નહીં કર્યો। इतना दूर है कि वो कभी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। અને એટલા દૂર है જે ક્યારે પ્રભુની પાસે नहीं, પહોંચી નહીં શકતા। एक समय हाँ मैं और आप परमेश्वर से इतना दूर थे। અને એક સમય હતો કે હું અને તમે પ્રભુથી ઘણા જ દૂર હતા। हम परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंच અને सकते थे। આપો ક્યારે પ્રભુની પાસે જઈ શકતા हम એવું स्वर्ग નહોતું। नहीं जा सकते थे। આપો સ્વર્ગ પણ નહીં જઈ શકતા। और ये परमेश्वर से दूरी हमें अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर करने वाली थी। અને પ્રભુથી દૂર થવું એ તો આપણને અનંત કાળ માટે સદાકાળ માટે સનાતન માટે આપણને પ્રભુથી દૂર નરકમાં થઈ જઈશું। रोमियो का 6:23 में लिखा है। અને રોમન 6:33 માં લખેલું है 23 6:23 માં पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। કે પાપનું જે મજદૂરી है એ તો મૃત્યુ है। ये मौत। मृत्यु कौन सी है? અને આ મોત કઈ બાબતોને हम બતાવે सोचते हैं है? कई बार कि हम शरीर में मर जाएंगे और उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। અને આપું એવું વિચારે કે જો હું શરીરની અંદર તો મરી જયો ત્યાર પછી તો બધી વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। આ પ્રમાણે નથી। परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत काल के लिए बनाया गया। અને દેવે જ્યારે માણસને બનાવ્યું ત્યારે એને અમર સનાતન માટે બનાવ્યું હતું। मनुष्य दो में से एक स्थान पर रह सकता है અને अपने जीवन में। માણસ બે માંથી એક જ જગ્યા પર જઈ શકે। दो चीजें जो आपको मैं बताऊंगा इटर्नल है। અને બે બાબતો જે અનંતની है જે અમર है। पहला, અને પહેલી બાબત नरक अनंत है, નરક એ હંમેશા માટે રહેવાનું है અનંત। स्वर्ग अनंत है, અને સ્વર્ગ એ પણ અનંત है। मनुष्य अनंत है। અને માણસ એ પણ અનંત है। और बोलता है कि यदि मनुष्य परमेश्वर से दूर रहेगा, અને કહેવામાં આવે છે બાઇબલમાં કે જો માણસ પોતાના પાપની અંદર મરી ગયો परमेश्वर से दूर रहेगा, અને પ્રભુથી દૂર રહેશે तो वह अनंत काल तक नरक में जलता रहेगा। તો એ અનંત કાળ સુધી નરકમાં બળતો રહે। अनंत काल मीन्स लाइक ऐसा मत सोचिए कि जैसे कि हम आग में कोई कागज डालते हैं और वो जल जाता है, राख बन के खत्म हो जाता है। અને અનંત કાળ એનો મતલબ એવો નહીં કે કંઈક આપણે આગની અંદર કાગળિયું ફેંકી દીધું એ હળગી ગયો અને રાખ બની ગઈ ને બધું મટી ગયું એવું નહીં। बोलते हैं कि वहां नरक जो है बहुत ही पीड़ादायक स्थान है। આ નરક એ બહુ ખતરનાક દર્દનાક बाइबल ભરેલી बताती બાબતો है है। कि नरक का कीड़ा मरता नहीं है। અને બાઇબલ કહે કે નરકનો જે કીડો है એ ક્યારે મરતો નહીં। लाइक आपने कभी सोचा है आपको किसी मधुमक्खी ने काटा हो? અને તમે ક્યારે વિચાર કર્યો જ્યારે તમને મધુમક્ખીએ किसी को काटा है? मधुमक्खी बिच्छू किसी ने काटा है? ડંખ માર્યો હોય કોઈ વીછીએ કે મધુમાખીએ? मेरे को बचपन में इधर बिच्छू ने काटा था। અને પાસ્ટર કહે છે કે હું નાનો હતો ત્યારે મને વિછુએ કહે છે કે હાથમાં 3 दिन तक मेरे हाथ में बहुत दर्द रहा था, અને 3 દાડા સુધી મારા હાથમાં ઘણો દુખાવો હતો। लेकिन उस बिच्छू को मैंने मार दिया। પરંતુ એ વીછીને મેં મારી નાખ્યો। उसके बाद उस बिच्छू ने मुझे कभी नहीं काटा। અને એ પછી એ વીછીએ એમને ફરી ક્યારે બસકું નહીં ભરી, लेकिन ડંખ નહીં માર્યો। પરંતુ नरक का जो कीड़ा है આ નરકનો જે કીડો है वो इतना पीड़ादायक है, અને એટલે એટલો દર્દ આપનારો है। वो आपको काटेगा, એ તમને ડંખ મારહે, आप उसको मार के फेंकोगे, તમે એને મારીને ફેંકી દો હો, वो फिर से जिंदा हो એ जाएगा, ફરીથી જીવતો થઈ वो જાય, फिर काटेगा, એ ફરીથી ડંખ મારહે, कभी नहीं मरता है। અને ક્યારે મરતો નહીં। वो पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी, અને એ દુખાવો એ દર્દ ક્યારે મટવાનું क्योंकि वो નહીં, अनंत काल के लिए है। કેમ કે અનંત કાળ માટે है। लेकिन પરંતુ बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य का 20, 14, 15 में आपको वो अनंत मृत्यु वहां पर मिल सकती है, देख सकते हैं उसके लिए। પ્રકટીકરણ તેનો
20मो अध्याय 14 और 15। 14 અને 15મી કલમ પ્રકટીકરણ। तो बोलते हैं कि आज इस दुनिया में इतनी बुरी खबरें हैं और उन बुरी खबरों का जो स्रोत है वो कहां से आया पता है आपको? अदन की वाटिका से। આ દુનિયાની અંદર આટલી બધી ખરાબ ખબરો છે, એનો જે એક જરિયો એને ક્યાંથી આવ્યો? તો એદનના બગીચામાંથી। अदन की वाटिका से। એદનના બગીચામાંથી આવી છે। मनुष्य हजारों वर्षों से एक अच्छी खबर सुनना चाहता है। અને માણસ હજારો વર્ષથી એક અસલ ખબર, હારી ખબર સાંભળવા માંગે છે। आनंद का सुसमाचार सुनना चाहता એ है, આનંદની સમાચાર સાંભળવા માંગે છે। इंतजार कर रहा है। એ રાહ જોઈ રહ્યો છે। और इसीलिए बाइबल बताती है, અને એટલા હાતર બાઇબલ બતાવે रोमियो છે। का 6:23 का अगर आप आगे बी भाग पढ़ोगे तो वहां लिखा है, અને રોમન તેનો 6થો અધ્યાય અને 23મી કલમનો જે બબ વિભાગનો ભાગ તમે વાંચો તારે, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। અને ત્યાં લખેલું છે કે પરંતુ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં અનંત જીવન છે। आदम में सब मरते हैं, આદમની અંદર બધા જ મરીવા यीशु લાગ્યા, मसीह में सब जिलाए પરંતુ जाएंगे। ઈસુ ખ્રિસ્તમાં બધાના જીવતા કરી દેવામાં આવે। लाइक आदम में मृत्यु है, આદમની અંદર મોત है, लेकिन यीशु मसीह में जीवन है। પરંતુ ઈસુ પ્રભુમાં जीवन है। तो आज हम 2025 साल में यहाँ पर हैं, અને આજો આપો 2025 વર્ષમાં આપો અહીંયા है, लेकिन आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पे आया। પરંતુ આજથી 2025 વર્ષ પહેલા પ્રભુ ઈસુ આ દુનિયામાં આવ્યા હતા। क्यों आया वो? અને તેઓ શા હાતર આવ્યા હતા? मनुष्य को उद्धार देने के लिए, માણસનું તારણ કરવા હારું। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत કેમ કે માણસની કોઈ સૌથી મોટી જરૂરિયાત હોય તો वो उद्धार है। એ એનું તારણ कई बार થાય। हम सोचते हैं हमारी सबसे बड़ी जरूरत पता है क्या है? અને કેટલીક વખત આપો વિચાર કરે કે મારી સૌથી મોટી જરૂરિયાત તો શું है? है ना? कई बार सोचते हैं मैं बहुत बुद्धिमान बन जाना चाहिए, કદાચ હું તો એવું વિચારું કે હું તો ઘણો બુદ્ધિમાન બની જાઉં કેટલું સારું। है ना? ये मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। कुछ लोगों के लिए, કદાચ થોડા લોકો માટે આ એની જરૂરિયાત कुछ હોઈ लोगों શકે। के लिए पैसा उनकी सबसे बड़ी અને जरूरत है। કેટલાક લોકો હાતર એમનો પૈસો એમની મોટી જરૂરિયાતો हाँ, લાગે। सोचते हैं अगर मैं सबसे बड़ा करोड़पति इंसान बन जाऊंगा, लाइक मेरे पास मुझे सब मिल गया, અને જો હું સૌથી વધારે એકદમ કરોડપતિ બની ગયો તો મને તો બધું જ મળી है ना? ગયું। यदि मुझे अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा लाइक पत्नी या पति मिल जाए तो मेरे लिए वही बड़ी बात है। અને જો મને અસલ ઘર, ગાડી કે પતિ પત્ની મળી જાય તો આ મારા માટે બસ બહુ કાફી है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत ये नहीं है, પરંતુ માણસની સૌથી મોટી જરૂરિયાત આ નથી। क्योंकि बाइबल बताती है यदि मनुष्य सब कुछ प्राप्त करे और अपने प्राण ही को खो दे तो उसे क्या लाभ? કેમ કે બાઇબલ બતાવે છે કે માણસ બધું જ મેળવી લે પણ પોતાના જીવને ખોવી નાખે તો એનો શું લાભ થાય? कुछ लाभ नहीं होगा એનો उसे। કશો લાભ નહીં થાય। और इसीलिए અને એટલા હાતર यीशु मसीह इस धरती पे आया પ્રભુ ઈસુના આ દુનિયા પર આવવું પડે, अनंत जीवन देने के लिए। અનંત જીવન આલવા હાતર। आपसे मैं एक सवाल पूछना અને चाहता हूँ, તમારા માટે એક પ્રશ્ન है। लाइक कभी आपने किसी को जेल में देखा है? किसी को जेल में मिलने गए आप? હું તમુ ક્યારે કોઈના જેલમાં કોઈને મળવા ગયા હો? बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे क्योंकि इस चीज से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता हमारा। ઘણા બધા લોકો મળવા નહીં ગયા હોય કેમ કે આપણો એનો સામનો નહીં કરવો बट પડતો। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई आपका बहुत ही करीबी जेल के अंदर है, અને તમો એક બાબત માની લો કે તમારો ઘણો સંબંધી है ना, रिश्तेदार कोई જેલમાં है, हमेशा के लिए, એ હંમેશા માટે એને રાખી મૂકવામાં है આવ્યો ना? છે। उम्र कैद, मालूम है उम्र कैद हो અને जाती है। તમને ખબર છે ઉંમર કેદ કોઈની થઈ જાય છે? बोलते हैं कि उस व्यक्ति को आप सबसे अच्छी चीज क्या दे सकते हैं? અને એ વ્યક્તિને તમે સૌથી અસલ બાબત તમે કઈ આલી શકો? देखिए जेल का माहौल कैसा होता है, वहाँ अच्छा खाना नहीं होता है, અને જેલનો માહોલ કેવો હોય છે? ત્યાં અસલ ખાવાનું નહીં अच्छा મળતું, बिस्तर नहीं होता है, અસલ બિછાનું નહીં હોતું, अच्छी चीजें नहीं होती है वहाँ એમના पर, માટે કોઈ અસલ વસ્તુ નહીં મળે, कुछ भी वहाँ पर अच्छा दिखाई नहीं देता અને है। કઈ પણ બાબત ત્યાં અસલ જોવા નહીં મળે। आप उसे सबसे अच्छी चीज क्या देंगे? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप जवाब અને दे सकते हैं। તમને પ્રશ્ન है કે જો તમે મળવા ગયા તો તમે એમને અસલ બાબત કઈ આપો? अच्छा घर का बना हुआ खाना लेके जाएंगे आप उसके लिए? તમો मोस्टली लोग ઘરેથી ऐसा करते हैं। તમે ઘરેથી બહુ સરસ તાજું તાજું ઘણું તાજું ખાવાનું બનાવીને લઈ ગયા, क्या वो व्यक्ति बहुत आनंदित होगा उस बात से? હું જે વ્યક્તિ એ ત્યાં છે આનંદિત થાય, उसको आप कुछ भी दे दो, दुनिया का सब कुछ दे दो, એને તમે દુનિયાની કઈ પણ બાબતો લઈ જઈને એને આપી દો ત્યાં, लेकिन उसके जीवन में वो आनंद नहीं आएगा, પરંતુ એના જીવનની અંદર એવો આનંદ નહીં આવે। क्योंकि वो कैद में है। કેમ કે એ કેદમાં પડેલો है। वो किस में है? એ હાની અંદર है?
कैद में, એ કેદમાં आप મુકાયેલો उसे है अच्छे कपड़े ले जाके दोगे, बोलेगा इसका क्या फायदा है, અને જો તમે એના માટે અસલ કપડા લઈને જાઓ તો એ કહે કે આનો મને શું ફાયદો થાય क्या फायदा है इस कपड़े का, આનો શું ફાયદો થાય આ किसको કપડાઓનો? दिखाऊं मैं यहाँ, આ કપડા હું પહેરીને કોણ દેખાડું कौन इसकी वैल्यू અને करेगा, કોણ એની કિંમત દેખાડે? कोई नहीं। કોઈ નહીં કરે। अच्छा खाना खाऊंगा, कल तो मुझे फिर बुरा ही खाना खाना है। અને આજે હું અસલ ખાવાનું ખાઉં, કાલે તો મારે ખરાબ ખાવાનું પણ ખાવું પડે। सबसे अच्छी खबर पता है उसके लिए क्या होगी? પરંતુ એના માટે વિચાર કરો કે અસલ ખબર કઈ હશે? आप एक वकील को लेके जाएंगे તમે એક વકીલને લઈને જાઓ और कहेंगे कि मैं आपके रिहाई के पेपर लेके आया। અને તમે કહો કે હું તમારો છુટકારો કરવા માટે, છોડાવવા માટે તમારા માટે वो પેપર व्यक्ति લઈને આવ્યો। अपने स्थान से कूद के खड़ा हो એ जाएगा, વ્યક્તિ ત્યાં બેઠેલો પોતાની જગ્યા પર ઊભો થઈને કૂદવા લાગે। राइट? સાચી વાત है? आनंद की बात होगी उसके लिए। એના માટે આનંદની વાત उसे आप है। कुछ भी दे दो वो इतना आनंदित नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे कहोगे कि आपका छुटकारा हो चुका है, आपको रिहाई मिल चुकी है, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, आपका भुगतान कर दिया गया है, वो व्यक्ति बोलेगा यही मुझे અને चाहिए था। તમે એને કઈ પણ બાબતો લઈ જઈને આપો, એ ખુશ નહીં થાય, આનંદિત નહીં થાય, પરંતુ એને કહો કે તમારા પાપોની સજા ભરી દેવામાં આવી છે, તમારો છોડાવી લેવામાં આવે, અને એ વ્યક્તિ ઘણો ખુશ થઈ જાય, આનંદિત થઈ જાય। वही हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह ने અને આ જ બાબત આ રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણા ये જીવન क्रिसमस હંગાતે पे કરી। हम लाइक अच्छे कपड़े किसी को दे सकते हैं, આ નાતાલના દિવસે આપણે કોઈને સારા એવા કપડા अच्छा આપી भोजन શકીએ, किसी को दे सकते हैं, અસલ ખાવાનું આપણે ખવડાવી लेकिन પણ अगर શકીએ। सबसे अच्छी चीज आप अगर किसी को दे सकते અને हो, જો તમે કોઈને સારી ઉત્તમ વસ્તુ આપવા માંગો હો, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार હું सुनाने आया हूं। તમને મોટા આનંદની સુવાર્તા સંભળાવું। यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर पैदा हुआ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા માટે આ દુનિયા પર એમણે જન્મ લીધો। वो हमारे लिए मारा गया, એ આપણા માટે ક્રૂસ પર બલિદાન થઈ ગયા, उसको कब्र में रखा गया એમના કબરની અંદર દાટી और वो દેવામાં तीसरे આવ્યા दिन जी उठा। અને ત્રીજે દાડે ફરી જીવતા થઈ ગયા। तो ये अच्छी खबर है। અને આ બહુ સરસ ખબર और है। ये अच्छी खबर क्या है? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर आना- मुझसे प्यार करता है, आ- उसने अपना बेटा मेरे लिए दे दिया। આ અસલ ખબર શું है? યોહાન 3:16 અનુસાર કે દેવ આપણને ઘણો જ પ્રેમ કરે। यूहन्ना 1:14, યોહાન 1:14 ये अच्छी खबर है। આ અસલ ખબર है। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा તો किया। વચન એણે દેહ ધારણ કર્યો અને આ કૃપા તથા સત્યતાથી આપણી વચમાં એમણે વાસો કર્યો। पहला कुरिन्थियों 15:1-4, ये मेरे लिए अच्छी खबर है, અને પહેલો सुसमाचार। કોરિન્થી 15મો અધ્યાય 1-4 એ સુવાર્તા है, મારા માટે અસલ ખબર है। यीशु नाम में उद्धार है, ये यीशु- मेरे लिए अच्छी खबर है। ઈસુ ખ્રિસ્તના નામના અંદર તારણ है, એ यीशु મારા मसीह માટે में અસલ ખબર अनंत है। जीवन है, रोमियो का 6:23 के हिसाब से, અને ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર અનંત જીવન है, સનાતનનું જીવન है। ये मेरे लिए રોમન अच्छी खबर है। 6:23 એ મારા માટે સારી ખબર है। यीशु हमें पापों से छुड़ाने की और हमें क्षमा देने के लिए तैयार है। ये लेकिन यीशु मसीह ने मुझे पापों से छुड़ाया और उसने मुझे क्षमा दी है, ये मेरे लिए सुसमाचार है। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે મને ક્ષમા કરી है અને મને છોડાવી લીધો है, આ મારા માટે એક અસલ ખબર है। इफिसियों का 1:7, એફએસસી પહેલો અધ્યાય 7મી કલમ, यूहन्ना 14:6, ये मेरे लिए एक अच्छी खबर है। યોહાન 14મો અધ્યાય 6ઠી કલમ મારા માટે અસલ ખબર है। આ मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે માર્ગ, સત્ય, જીવન હું છું અને મારા વગર કોઈ પણ પિતાની પાસે જઈ यूहन्ना શકે એમ નથી। 11:25, યોહાન 11:25 માં લખ્યું बाइबल है। बताती है, બાઇબલ એવું કહે यीशु मसीह ने कहा અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, કે પુનરુત્થાન और जीवन હું છું अगर कोई मुझ पर विश्वास અને करेगा જો કોઈ મારી ઉપર વિશ્વાસ કરે वो कभी नहीं मरेगा, એ ક્યારે નહીં મરે और यदि मर भी जाए અને જો એ મરી બી वो જાય फिर जी તો उठेगा। એને ફરી જીવતો કરવામાં यीशु આવે। मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। અને પ્રભુ ઈસુની અંદર આપણને અનંત જીવન जब है। हम उस पर विश्वास करते हैं, અને જ્યારે આપો એમના પર વિશ્વાસ કરીએ हम अनंत जीवन पाते हैं। આપો અનંત જીવન उस अच्छी પામીએ हैं। खबर पे हमें विश्वास करने की અને जरूरत આ સાચી ખબર પર આપણે વિશ્વાસ है। કરવાનો यीशु है मसीह मेरे लिए इस धरती पे आया, કે પ્રભુ ઈસુ મારા માટે આ દુનિયામાં આવ્યા, मेरे लिए मारा गया, मारा गाड़ा लिए- गया और तीसरे दिन जी उठा। મારા લીધે બલિદાન થયા, એ મરણ પામ્યા, એમને દાટી દેવામાં આવ્યા અને ફરી ત્રીજા દાડે જીવતા થયા। और यही अच्छी खबर हमें અને दूसरों को बतानी है। આ જ અસલ ખબર આપણે બીજાને પણ કહેવાનું है। क्यों बताना है हमें अच्छी खबर सबको? અને આપું કેમ એકબીજાને બતાવવાની है અસલ ખબર? क्योंकि एक समय आ रहा है, કેમ કે એક સમય પણ આવી રહ્યો इस है। धरती पर 7 साल का क्लेश होने આ वाला है। દુનિયા પર 7 વર્ષનો મહાક્લેશ बहुत આવવાનો है। खतरनाक समय है, બહુ ભયંકર સમય રહેવાનો है। पीड़ाओं का समय है, એ દુઃખનો સમય રહે और इसलिए हम एक दूसरे को અને सुसमाचार એટલા बताएं। હાતર આપો એકબીજાને સુવાર્તા આપીએ, हमें अच्छे समाचार लोगों को देने આપણે की जरूरत અસલ ખબર લોકોને આપીએ। है। हालेलुया। હાલેલુયા।
हम के दूसरों को क्या दे सकते हैं? આપો બીજાને હું આલી શકીએ? खाना, कपड़ा, पैसा, ખાવાનું, ये लोगों की પૈસો, जरूरत नहीं है। રૂપિયો આ લોકોની જરૂરિયાત નહીં મળે. लोगों की जरूरत है उनके पापों से छुटकारा। લોકોની જરૂરિયાત એ હે એના પાપથી એને છુટકારો મળી જાય. आमीन। આમીન. तो इस क्रिसमस में हम लोगों को क्या देंगे? તો આ નાતાલના સમયની અંદર આપણે લોકોને હું આલવાના હે? क्या देंगे? આપો હું આલી હો? बड़े आनंद का सुसमाचार। મોટા આનંદની સુવાર્તા. इस क्रिसमस में हम लोगों को क्या देंगे? अच्छी खबर। આ નાતાલના સમયની અંદર આપણે લોકોને એ તાજી ખબર આપીએ. સરસ. और वो है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। સારી ખબર એને કહેવાય છે કે ઈસુ પ્રભુ મારા પાપોના લીધે મરણ પામ્યા, દાટી દેવામાં આવ્યા અને ત્રીજે દારે ફરી તેઓ જીવતા થયા. आइए हम प्रार्थना करते हैं। આવો આ સમય આપો પ્રાર્થના કરીએ. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आप महान हैं। आप स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आए ताकि हम स्वर्ग जा सकें। पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत बलिदान के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। આવો આ સમય આપણે પ્રભુના વચન માટે જોરદાર તાળી બજાવીએ. तो आप सब लोग कैसे हो? अच्छे हो, है ना? अद्भुत था परमेश्वर का वचन, जिन्होंने हमारे जीवन को प्रोत्साहन दिया कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमारी चिंता करता है. यदि परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता तो वो अपना स्वर्ग कभी नहीं छोड़ता, है ना? वो अपनी महिमा कभी नहीं छोड़ते, लेकिन वो हमारी चिंता करते हैं ना. इसलिए वो छोड़कर इस दुनिया पे आए. पाप हमने किया था, लेकिन हमारे बदले में वो मरे ताकि हम नरक न जाए. तो अद्भुत बात है. तो ये समय रहेगा, भेंट का समय होगा. तो कुछ वचन से कुछ बात देखते हैं. तो जैसे यूहन्ना 3:16, है ना? यूहन्ना 3:16 શું કહે કે દેવે જગત પર એટલો બધો પ્રેમ રાખ્યો કે એણે પોતાનો એકનો એક દીકરો આપ્યો, है ना? અને બાઇબલ કહે છે કે એ સારું કે જે કોઈ એના પર વિશ્વાસ કરે એનો નાશ ન થાય, પરંતુ તે અનંત જીવન પામે. અને કેટલો અદ્ભુત સમય है કે પ્રભુએ દેવે જગત પર પાપી મન, है ना? જગતની અંદર કેવા લોકો है ને? આપું જોઈએ બાઇબલ કહે જગતની અંદર કેવા લોકો है ને? પાપથી ભરાયેલા, એકબીજા મન, કર્મ, વચનથી બધા પાપી है ને? અને આ દુનિયાની અંદર તો ઘણું જ પાપ વધી રહ્યું છે. પણ વિચાર કરો કે તો છતાં પણ પ્રભુ જગત પર પ્રેમ રાખે, અને પ્રેમ રાખવાની ખાતર એણે પોતાનો એકનો એક દીકરો આપી દીધો કે પાપી લોકો નાશ ન થાય, પરંતુ એ અનંત જીવન પામે. તો કેટલી અદ્ભુત બાબત છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ દુનિયામાં આપણા હાથર આવ્યા અને એમણે આપણા માટે પાપોની માફીનો માર્ગ કાઢ્યો. આપણું નરક ન જઈએ, આપણું એની હાથે સ્વર્ગમાં રહીએ, અને એટલા માટે ઈસુ પ્રભુ આ દુનિયા પર આવ્યા. તો આપણા માટે આનંદની વાત છે. તો આવો આ સમયની અંદર ભેટનો સમય છે, તો આપણું આનંદથી, ખુશીથી પ્રભુના માટે આપીએ, है ना? આપણને ખબર है કે આકાશ, પૃથ્વી, ધરતી सब कुछ બનાવનાર કોણ है? પ્રભુ. એને કશાની જરૂર નહીં મળે, કેમ કે એ જ બધું આપણને આલે છે. પણ એની સેવાના માટે એમની ઈચ્છા છે કે આપણું એમના સેવાના માટે ભેટ આપીએ, है ना? તો આ એક અદ્ભુત સમય છે, અને પ્રભુ એના દ્વારા ઈચ્છે છે કે આપણું એ પ્રભુના ઉપર નિર્ભર રહીએ. આપણને ખબર પડે કે મારી પાસે જે કંઈ આશીષ આવે છે એ પ્રભુના તરફથી આવે, અને એનો આપણે આભાર માનવા માટે, ધન્યવાદ આપવાના માટે આપણી ભેટો દ્વારા આપણે એની સેવા માટે, મહિમા માટે પ્રભુને આદર આપીએ. તો આવો સમય એક ગીત ગાવામાં આવશે, વર્શિપ ટીમ આગળ આવશે, અને આપણા દાન પ્રભુની સામે લાવીએ, અને ખુશીથી આપો, આનંદથી આપો, કોઈ જબરજસ્તી નહીં. થોડું ગમે તેવું પ્રભુ તમને જેમ પ્રેરણા આપે એ પ્રમાણે તમે પ્રભુને આપો, કોઈ દબાણથી નહીં, આનંદથી.
अच्छा, आइए हम इस गीत को गाएंगे। जन्म लियो हो जन्म लियो, मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो हो जन्म लियो, मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो हो जन्म लियो, मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। पालनहारे तुम ही हो, तारणहारे तुम ही हो, सबसे प्यारे तुम ही हो, सबसे न्यारे तुम ही हो। पालनहारे तुम ही हो, तारणहारे तुम ही हो, सबसे प्यारे तुम ही हो, सबसे न्यारे तुम ही हो। पालनहारे तारणहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे, पालनहारे तारणहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे। जन्म लियो हो जन्म लियो, मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो हो जन्म लियो, मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। दिल की चाहत तुम ही हो, रूह की राहत तुम ही हो, मेरा सुकून तुम ही हो, मेरा जुनून तुम ही हो। दिल की चाहत तुम ही हो, रूह की राहत तुम ही हो, मेरा सुकून तुम ही हो, मेरा जुनून तुम ही हो। दिल की चाहत रूह की राहत, मेरा सुकून मेरा जुनून। दिल की चाहत रूह की राहत, मेरा सुकून मेरा जुनून। जन्म लियो हो जन्म लियो, मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो हो जन्म लियो, मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। આવો આ સમયે આપણે પોતાની જગ્યા પર ઊભા થઈએ અને બીજું એક ગીત ગાઈશું, બેથલેહેમ મેં ચમકા સિતારા, મજૂસિયો કો રાહ દિખાયા. અને આ છેલ્લું ગીત છે. बेथलेहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया. बेथलेहम में चमका सितारा, मजूसियों को
परमेश्वर का पुत्र है यीशु, मानव रूप जो धारण किया, स्वर्गीय महिमा छोड़कर उसने गौशाले में जन्म लिया। परमेश्वर का पुत्र है यीशु, मानव रूप जो धारण किया, स्वर्गीय महिमा छोड़कर उसने गौशाले में जन्म लिया। शनि में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला। शनि में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला। बेथलेहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। बेथलेहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। पापों में डूबे हुए जहां को पापों से मुक्ति देने वो आया। दुखों से टूटी मानवता को अपनी शांति देने वो आया। पापों में डूबे हुए जहां को पापों से मुक्ति देने वो आया। दुखों से टूटी मानवता को अपनी शांति देने वो आया। गली में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला। गली में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला। बेथलेहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। बेथलेहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। આવો આ સમય આપણે પોતાની જગ્યા પર બેસીએ. શું તમને આજના નાતાલ પર્વના દિવસમાં શું તમે ભરપૂર આનંદ ઉઠાવ્યો? તો એક વખત બોલો હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ. હે ને? તો અદ્ભુત સમય રહ્યો. આપો પ્રભુની ઉપસ્થિતિમાં અદ્ભુત સમય વિતાવ્યો. કેમ કે આજે આપણે આ જગ્યા પર ભેળા થવું, હે ને, કોની ઈચ્છા હે? પ્રભુની. હે ને? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લીધે જ આપો આ જગ્યા પર હે. અને એ પ્રભુ સૌથી બુદ્ધિમાન પરમેશ્વર હે. એ પ્રભુ આદરને યોગ્ય હે. એ આપણને ઘણો જ પ્રેમ કરે અને એટલા માટે પોતાનું સ્વર્ગ બધું છોડીને આ દુનિયા પર આવ્યા અને આપણા માટે બલિદાન થઈ ગયા. એ મરણ પામ્યા અને ત્રીજે દાડે જીવતા થયા. અને બાઇબલ કહે જે કોઈ એમના આ કાર્ય પર વિશ્વાસ કરે એનો તારણ ફ્રીમાં મળે. હાલેલુયા. તારણ કેવી રીતના મળી જાય હે? ફ્રીમાં, મફત. કશું તારણ મેળવવા કશું જ કરવાનું નહીં, ખાલી વિશ્વાસ કરવાનો હોય. તો પરંતુ બધું કામ કોણે કર્યું હે? પ્રભુ ઈસુએ. તો આવો આ સમય આપણે પ્રભુનો હૃદયથી આભાર માનીએ. કેમ કે આ સમય થોડો સમય લઈશું આપણે પ્રભુનો આભાર માનવા માટે અને એના લોકોનો પણ જેની સેવાના માટે ઉપયોગી બને. તો આવો આ સમય માટે આપણે પ્રભુનો આભાર માને, પ્રભુના માટે જોરદાર તાળી પાડીએ. તો ધન્યવાદ હો પરમેશ્વરનો, આપો આભાર માનીએ હે. અને આ સમયે ગ્રેટર ગ્રેસ ચર્ચના માટે પણ આભાર માનીએ હે. ટીમ માટે એમણે ઘણી મહેનત કરી, ઘણો પ્રયત્ન કર્યો હોય, હે ને, ડેકોરેશન બધું જ વ્યવસ્થા, હે ને. તો એના માટે આપણે એમનો આભાર માનીએ. તો આવો જોરદાર તાલીઓથી આપણે એમનો આભાર માનીએ, ગ્રેટર ગ્રેસ ચર્ચનો, એમના ટીમનો. અને આપણી વચમાં કુશલગઢથી ચર્ચ અહીંયા આવેલું છે, એમનો પણ આભાર માનીએ. તમે કુશલગઢનો ચર્ચનો આપણે જોરદાર તાલીઓથી સ્વાગત કરીએ, એમનો આભાર માનીએ, ધન્યવાદ આપીએ એમને. અને જિજ્ઞેશભાઈ વર્શિપ ટીમ, હે ને, અહીંયા ગીતો દ્વારા અદ્ભુત પ્રભુનો સ્વભાવ, હે ને, ગીતોના બોલની અંદર હતો. પ્રભુનો મહિમામાં તેઓ આગેવાની કરતા હતા. તો આપણે જિજ્ઞેશભાઈ વર્શિપ ટીમનો આપણે જોરદાર તાલીઓથી એમનો પણ આપણે આભાર માનીએ. અને આ સમયે ખાસા લોકો પણ જેમણે
ખુશીથી સેવાઓ કરી છે અસર્સની, હે ને. તો સ્વયંસેવકનો પણ આપણે જોરદાર તાળીઓથી એમનો આભાર માનીએ. અને જે સેટઅપ ટીમ હતા, હે ને, જેમણે બધું સેટઅપ કર્યું છે, એમના માટે પણ આપણે આભાર માનીએ ટીમ માટે. તો એમના મહેનતના માટે પણ આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. અને આપણી વચમાં જે લોકોએ આર્થિક રીતે, હે ને, આ નાતાલના પર્વને ઉજવવાના માટે એમણે મદદ કરી છે, પોતે શરીરમાં રહીને એમણે ઘણો ભાગ આપ્યો હે ને. શરીરમાં રહીને એમણે ઘણી મહેનત કરી છે. અને એમણે પ્રાર્થનાઓ પણ, ઘણા લોકોએ પ્રાર્થનાઓ પણ કરી છે, ઘણા લોકોએ સહાયતા પણ કરી છે. એ બધાના માટે આપણે આભાર માનીને એમના માટે પણ જોરદાર તાલીઓ પાડીએ. અને આ જગા જ્યાં આપું બેઠેલા હે ને, જેમણે આપણને જગ્યા આપી છે, એ લોકોનો પણ આપણો આભાર માને. તો એમનો પણ આપણે દિલથી તાળીઓ પાડીએ, એમનો આભાર માનીએ. અને આપણી વચમાં જે શહેરનૈના બાળક સાહેબ છે, એમની સાથે ટીમમાં, હે ને, વિજય ડામોર સર અને ઘણા બધા છે. હું એમનું નામ નહીં જાણતો, મનીષ સાહેબ પણ છે અને ઘણા બધા છે. તો એમનો પણ આપણે હૃદયથી આભાર માનીએ કે આપણી વચમાં છે મહેમાનની રીતે. તો એમનો પણ આપણે આભાર માનીએ, તાલીઓથી સ્વાગત કરીએ. તો ધન્યવાદ આપીએ. અને અહીંયા તમે મંડપ જોઈ રહ્યા હો, વિજયભાઈ એમના પરિવાર તરફથી, હે ને. તો એમનો પણ આપણે આભાર માનીએ, હે ને, મલવાસીથી આપણી વચમાં છે. તો એમનો પણ આપણે આભાર માનીએ, ધન્યવાદ આપીએ તાલીઓથી. અને જે લોકોએ જમવાની પણ સરસ વ્યવસ્થા, જમવાનું પણ બનાવ્યું છે, તો ખાવા બનાવનાર જે કુક છે ને, એમનો પણ આભાર માનતા આપણે એમને પણ તાળીઓથી એમનો ધન્યવાદ આપીએ. અને અહીંયા જેટલા પણ આપો અહીંયા બધા ભેગા મળ્યા હે ને, ઝાલોદ ચર્ચના લોક હે, કુશલગઢના ચર્ચના લોક હે, અને તમુ અહીંયા આવેલા હો, હરેક વિશ્વાસી, હે ને, અલગ અલગ સેવક, પાસ્ટર, એમના ચર્ચના લોકો હે, આપણી વચમાં હે. તો આપણે એકબીજાના માટે બધાનો આભાર માનીએ કે કિંમતી સમય કાઢીને અહીંયા આવ્યા હો અને આ નાતાલના પર્વની અંદર તમે ભાગ લીધો. આપણે બધાનો આભાર માનીએ અને એકબીજાના માટે આપણે તાલીઓ પાડીએ. તો થેન્ક યુ, ધન્યવાદ આપ બધાનો. અહીંયા આપણે પ્રોગ્રામનો સમાપ્ત કરીએ છે. તમારા માટે અહીંયા ભોજનની વ્યવસ્થા છે, જમીને જજો. અને આપણી વચમાં સાઉન્ડ સિસ્ટમ લઈને આવનારા ભાઈઓનો પણ આપણે જોરદાર તાલીઓથી એમનો પણ આભાર માનીએ કે એમણે સરસ એવો સાઉન્ડ આપ્યો, અમારો અવાજ તમારી સુધી પહોંચી શક્યો, નહીં તો એમનો પણ આપણો આભાર માનીએ. ધન્યવાદ આવવા માટે. અને ભોજનની વ્યવસ્થા કરેલી છે, ને, તો તમે જરૂર જમીને જજો. અને આવો આ સમય આપણે ભોજન માટે પ્રાર્થના કરીએ અને છેલ્લી પ્રાર્થના કરીએ. અને પાસ્ટર રમેશ કટારા આપણી આગળ અહીંયા આવશે અને તેઓ છેલ્લી પ્રાર્થના કરશે. ત્યાર પછી આપણું છૂટા પડીશું. અને જ્યારે ભોજનની વ્યવસ્થા થાય ત્યારે ધ્યાન રાખજો, બહેનો અને બાળકોને પહેલાં ખાવા દઈએ, હે ને. બહેનો અને કોને? બાળકોને પહેલાં જમવા દે, પછી આપણું ભાઈઓ શાંતિથી જમીએ ને વધારે, બરાબર. તો આવો આપણે છેલ્લી પ્રાર્થના કરીએ. हमारे महान अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शुरू से अंत तक आपने यहाँ पर अपने अद्भुत सेवा में इस क्रिसमस पर्व को खुशी मनाने में प्रभु आपकी महान उपस्थिति यहाँ पर हमने देखा है। प्रभु आपके वचन के जरिए अपने दास के जीवन में आपने हमारे सभी के जीवन में ये वचन, ये बीज बोया है। हमारे पास, सबके पास एक खुशी का, आनंद का सुसमाचार है, वो जगत के लिए है। इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। यहाँ भी जो भी सारी व्यवस्थाओं अपना अनुग्रह में आपने किया है अपने बेटा बेटी के माध्यम से, उन सारी बातों के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु। इस सभा को करने में अपनी अद्भुत सुरक्षा इस जगह पर रही है, इसलिए भी हम धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। अभी हम यहाँ से भोजन लेकर हम अपनी अपनी जगह में जाएंगे प्रभु। हमारे सभी के साथ आप रहना प्रभु, और भोजन को भी आशीषित करना। जिन हाथों से बना है
उनको भी परमेश्वर तो आशीषित करना। हम सब खा पीकर परमेश्वर आपकी महिमा में इस्तेमाल हो जाए। 2026 के लिए परमेश्वर हम एक महान दर्शन के साथ आपके अनुग्रह में, आपके वचन में हम आशीषित हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। आदरमान इज्जत केवल प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। તો અહીંયા આપણે ક્રિસમસનો પ્રોગ્રામ પૂરો કરીએ છીએ. તમે જમવા જઈ શકો છો. સામે બાથરૂમ છે, વોશરૂમ, ત્યાં પણ કોઈને જવું હોય તો જઈ શકો છો ને. ફ્રી છો. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ.